Hello students, today I am starting the second chapter of your book Civics and the chapter name is Federalism. In first chapter Power Sharing, you studied regarding vertical division of power. Vertical division of power in forms of power sharing, you studied regarding vertical division of power. It means share of power from top level to lower level. So the federalism is all about this share of power or division of power. We will study the vertical division of power in details in federalism. So the simple definition of federalism can be derived from this, that federalism is the vertical division of power in a country. Okay, so what we have to study in this chapter? In this chapter we will study about federalism. What is federalism? What are its main features? And we will see the provisions of federal form of government or the features of federalism in Indian Constitution. We will also study regarding the provisions that strengthen the federalism in India. We will see the Panchayati Raj and municipalities, the lower forms of government introduced in India, constitutionally given powers to strengthen federalism in India. So let's see what is federalism. Federalism, also called federal system of government, federal form of government. So what is federalism? Federalism is a system of government. Federalism is a system of government in which power is divided or shared between national authority and regional authority. National authority and regional authority. National authority means national government, central government, union government. Regional authority means its constituent units of a country. A country is divided into many parts for the purpose of administration. So the constituent units are the states, regional level or local level. So what is federalism? It is a form of government in which power is shared between national government and a state government, union government and regional government. See, तो ये है आपका फेडरलिज्म, जिसमें पावर को जो है आपका टॉप लेवल का, जिसको हम लोग नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और लोअर लेवल का जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट्स जो भी है कह सकते हैं, इन दोनों के बीच पावर शेयर किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन. हम फीचर्स में पढ़ेंगे, दिस पावर इज शेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से शेयर किया जाता है. अब देखिए, हम अगर वर्ल्ड में इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे वर्ल्ड के कंट्रीज में, तो वर्ल्ड में अबाउट 200 कंट्रीज है. आप यूएनओ को लिस्ट में देखिएगा 194 कंट्रीज के आसपास है. हम 200 लेके चल रहे हैं. वर्ल्ड में अबाउट 200 कंट्रीज है, लेकिन उसमें 25 कंट्री ही ऐसा है, अबाउट 25 कंट्री जहां फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सोचिए, लेस देन आपका 20% है, लेस देन 20% है. स्टिल वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग फेडरलिज्म. वाई? तो ये जो 20% है वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन को कवर करता है. ये जो 25 कंट्री, सॉरी, ये जो 25 कंट्री है वहां वर्ल्ड के 40% लोग रहते हैं. ठीक है, तो ये वर्ल्ड का 40% लोग जो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किए हुए हैं, इससे अफेक्टेड हैं, और इंडिया भी
इस कंट्री में से एक है, तो इसीलिए इसको पढ़ना हम लोग के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्लियर हुआ, इसका डेफिनेशन। आप जो है अगर कोई पूछे फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म जो है शेयरिंग ऑफ पावर है किसके बीच, टॉप लेवल गवर्नमेंट के बीच और जो लोअर लेवल लोकल लेवल्स गवर्नमेंट है उसके बीच। ठीक है, तो टॉप लेवल जो है नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहिए, और लोअर लेवल जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट कहिए। ठीक है, ये है आपका फेडरलिज्म। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का मेन फीचर्स है, इसमें जनरली 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब देखिए जैसे ये कंट्री है, अब कंट्री में आपका स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, तो कंट्री का कई कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हो गया। कंस्टिट्यूएंट यूनिट समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझिए, स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट है, बीच में ब्लॉक है, उसके बाद विलेज आता है। तो ये सब जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री है। ठीक है, तो जब हम लोग पावर शेयर करते हैं कंट्री और स्टेट के बीच, जनरली 2 लेवल, एक आइडियल फेडरल सिस्टम होता है, वहां मेनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरल कंट्री का एग्जांपल देखिए, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, रसिया है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करता है। तो जो आइडियल फेडरल सिस्टम है वहाँ 2 लेवल्स होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, एक कंट्री और एक स्टेट या प्रोविंस, जिसको हम लोग रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं, या 2 से ज्यादा लेवल भी हो सकता है। जैसे इंडिया में आपका कंट्री है, स्टेट्स है, कंट्री नेशनल गवर्नमेंट हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये आपका पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज हो गया। अब देखिए यहाँ 2 या 2 से ज्यादा लेवल होता है, ये फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का। और ये दोनों जो है आपका सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं, सेम सिटीजन पर रूल करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल होता है, लेकिन बोथ गवर्नमेंट्स गवर्न और रूल द सेम सिटीजन्स। दोनों गवर्नमेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जो आपका इंडिपेंडेंट होता है। अब देखिए जो सेकंड फीचर्स है फेडरलिज्म का, इनका ज्यूरिसडिक्शन जो है सेपरेट होता है। ज्यूरिसडिक्शन कहने का मतलब, जैसे देखिए एक कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन जो है ये पूरा कंट्री हो गया, अब इसमें स्टेट है तो स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन आपका ये है। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन मतलब जहां वह एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जहां वह अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जहां के लिए अपना वो लॉ बनाते हैं, तो इनका सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इनका सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन कहने का मतलब लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन। टैक्सेशन कहने का मतलब रेवेन्यू। ठीक है, तो इनका सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है, जो इनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो फेडरलिज्म में ये बात याद रखिएगा कि सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होता है लेजिस्लेशन के मामले में, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, टैक्सेशन या रेवेन्यू के मामले में, ये जो है सेपरेट होता है। ठीक है, यानी कि स्टेट अपना सेपरेट लॉ बनाता है, नेशनल गवर्नमेंट आपका सेपरेट लॉ बनाता है। अब देखिए ये जो 2 लेवल होता है, ये दोनों लेवल में जो पहला लेवल होता है वह इंटायर कंट्री को गवर्न करता है और उसको कुछ वैसा सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है लॉ बनाने के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेजिस्लेशन के लिए, रेवेन्यू के लिए, जो कॉमन इंटरेस्ट से आप जो कॉमनली जो है सब उससे अफेक्ट होता है। जैसे आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, जैसे आपका डिफेंस है, जैसे आपका फॉरेन अफेयर्स है, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम है, जैसे आपका कम्युनिकेशन है। और जो दूसरा लेवल होता है वो लोकल जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज है उसको टेक केयर करता है। ठीक है, तो ये 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, दोनों के पास सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है। अब देखिए एक जो है ये जो आपका ज्यूरिसडिक्शन है या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड करने का मतलब है जो भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है। ठीक है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, यानी कि
ये कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होगा, लेकिन जहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है। दूसरा और है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिटेन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी जो रूल्स है, रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, वह रिटेन होगा। यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखिएगा कि जो ज्यूरिसडिक्शन है या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वह जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहता है, उनके ज्यूरिसडिक्शन, और अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन वे रूल करते हैं सिटीजन्स को। ठीक है, अब देखिए जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो सकता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहेंगे जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके। ठीक है, लेकिन जहाँ आपका जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, यानी उसका जो बेसिक फीचर्स है, की फीचर्स है, की फीचर्स कहने का मतलब वैसा फीचर्स जिससे ये भी अफेक्ट हो रहा है और पूरा कंट्री भी अफेक्ट हो रहा है, तो उसको जो है आपको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज या अमेंड नहीं कर सकता है। उसको चेंज या अमेंड करने के लिए आपको इस पूरे गवर्नमेंट के साथ साथ ये जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंस है, उसका भी कंसेंट चाहिए, उसका भी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर्स क्या होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द बेसिक फीचर्स of the constitution in federal form of government cannot be changed unilaterally. It requires the consent of the local government, regional governments और provincial governments। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है आपका जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर अगर आपका जो नेशनल गवर्नमेंट है और ये स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट्स है, डिस्प्यूट्स करने का मतलब ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के, या जो पावर डिवाइड किया गया है उसको लेकर के, चाहे लेजिस्लेशन पावर हो, एडमिनिस्ट्रेशन पावर हो, या आपका टैक्सेशन का पावर, उसको लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तब जो है आपका कोर्ट डिसाइड करता है कि यह जो है पावर किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है। यानी कि यहाँ जो फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट है वहाँ कोर्ट्स जो है उसके पास पावर होता है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, और अगर कोई डिस्प्यूट हो सेंटर और स्टेट के बीच, यानी नेशनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तब वो जो है आपका जुडिशियरी एक आपका रेफरी का काम करता है, अंपायर का काम करता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो एक ये फीचर्स है कि आपका जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब देखिए जो आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर मिलेगा आपको। बाईकैमरल क्यों, तो देखिए आप इंडिया में भी देखिए राज्यसभा है जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो बाईकैमरल एक जो है आपका जो एक लोकसभा जिसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं इंडिया में, ये जो है आपका कंट्री का सिटीजन उसको डायरेक्टली इलेक्ट करता है। ठीक है, अब स्टेट्स को कंट्री का सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट कर रहा है और वो सिटीजन जो है स्टेट में भी रह रहा है, लेकिन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपका अलग से हाउस रहता है। ठीक है, सारा कंट्री में, जनरली सारा कंट्री में है ये, जहाँ भी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो वही है इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो जहां भी आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां आपका लेजिस्लेचर क्या होगा, बाईकैमरल होगा। तो ये 5 मेन फीचर्स है फेडरलिज्म का। ठीक है, कि यहाँ 2 से ज्यादा लेवल होता है, इनका ज्यूरिसडिक्शन जो है सेपरेट होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेपरेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होता है, जो भी ज्यूरिसडिक्शन है या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट को जो पूरे सिटीजन्स को अफेक्ट करता है ना, उसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोविंशियल या जो लोकल गवर्नमेंट है उसका जो है कंसेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तब जुडिशियरी उसको सॉल्व करता है। क्यों सॉल्व करता है, अभी जो है हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे इसको। अभी देखिए ये समझिए कि जो आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, डुअल ऑब्जेक्टिव से। डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
तो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, सबसे पहले कि एक बहुत सारा यूनिट मिल करके एक बड़ा कंट्री बन गया, तो ये जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इनको पावर प्रोवाइड करता है, तो ये जो है इनको सेफ करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक छोटा छोटा यूनिट मिलकर जब बड़ा यूनिट बनता है तो एक यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए जो भी बड़ा कंट्री है वहाँ आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मिलेगा, रिलीजियस डाइवर्सिटी मिलेगा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मिलेगा, अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी मिलेगा। तो वहाँ जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिस किया जाता है सो दैट डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके। यानी जहाँ भी डाइवर्सिटी है वहाँ के लिए अगर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तब वह है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि जो है जो डाइवर्स सिटीजन्स हैं उनको एक अलग से कुछ पावर दिया जाए उनको रूल करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो 25 कंट्री है वर्ल्ड का वह एरिया में बड़ा है, यानी वही कंट्री फेडरल सिस्टम को जनरली आपका प्रैक्टिस करता है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और जिसका एरिया बहुत बड़ा हो, क्योंकि वहाँ आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, चाहे वह रीजनल डाइवर्सिटी हो, चाहे वह आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, या फिर आपका जो सोशल डाइवर्सिटी हो, ये सब मिल सकता है। अब देखिए डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म। डुअल एस्पेक्ट्स क्या है? तो डुअल एस्पेक्ट्स है म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है? तो देखिए ये जो आपका प्रोविंशियल यूनिट है, स्टेट यूनिट है, ये जो है आपका एक विश्वास, एक जो है आपका फेथ क्रिएट करेगा नेशनल गवर्नमेंट पे कि नेशनल गवर्नमेंट जो है इसके ऑटोनॉमी को, इसके इंडिपेंडेंस को हार्म नहीं करेगा। और उसी तरह से नेशनल गवर्नमेंट जो है वह स्टेट पर ट्रस्ट रखेगा कि ये जो है वैसा लॉ बनाएगा जो एक नेशन को यूनाइटेड रखेगा, रेस्पेक्ट देगा नेशन को, ठीक है। और दूसरा है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर कहने का मतलब है कि ये जो है यूनाइट रहे, ठीक है। और एक दोनों में कंसेंट होता है, एग्रीमेंट होता है कि हम जो है हमारा यह रूल है, ठीक है, हम यह रूल से बंधे हुए हैं, हमारा ये लेजिस्लेशन पावर है, हमारा ये टैक्सेशन पावर है, हमारा ये जुरिस्डिक्शन है। उसी तरह से नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये जुरिस्डिक्शन है, ये पावर है, ये जो है रूल से बंधे होते हैं, ठीक है। तो आपका फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो ईच यूनिट्स है, हर एक यूनिट, चाहे वह नेशनल यूनिट्स हो गया पूरा कंट्री या फिर उसका प्रोविंशियल यूनिट्स, एक रूल से बंधे होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट रूल जो है वह आपका गवर्न करते हैं सिटीजन्स को। जैसे देखिए समझिए एक एग्जाम्पल कि ये देखिए आपका एक अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट है आपका, 3 अपार्टमेंट है, ठीक है। और सपोज कीजिए कि यहाँ जो है आपका 9 है, यहाँ जो है 16 है, और यहाँ जो है 6 घर है छोटा छोटा, ठीक है। ये अपार्टमेंट है 3 और यहाँ जो है 6 घर है। अब देखिए अपार्टमेंट में यहाँ पे ये समझिए कि ये जो अपार्टमेंट है पूरा, ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हैं अपार्टमेंट जो है कंट्री को डिनोट कर रहा है, और ये जो छोटा छोटा आप यूनिट देख रहे हैं ये सब, ये जो है प्रोविंशियल या स्टेट्स गवर्नमेंट को डिनोट कर रहा है। अब देखिए ये अगर बाहर में ही चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड रखें तो उसका पैसा क्या कोई एक आदमी देगा? उसका पैसा जो है पूरा अपार्टमेंट वाला मिलकर देगा। तो ये जो है आपका जो नेशनल गवर्नमेंट है, यानी कि जो पूरा अपार्टमेंट का उसका कोई लीडर होगा, इसी में से कोई एक लीडर होगा। जिस तरह से कंट्री के विदिन से लीडर जो इलेक्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव, उसी तरह से अपार्टमेंट में इसका एक कोई लीडर होगा, और वह लीडर जो है इस पर डिसाइड करेगा कि यहाँ जो है सिक्योरिटी गार्ड रहेगा कि नहीं, यहाँ सिक्योरिटी कैमरा रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो आप देखिए कि ये जो पूरा अपार्टमेंट है ये कंट्री को डिनोट कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो घर में रहने वाला लोग है उसका भी जो है एक अपना अलग, वहाँ का फादर जो है समझिए कि सीएम है, ठीक है, मदर जो है होम मिनिस्टर्स है, और 1-2 जो है बच्चे हैं वो सिटीजन्स मान लीजिए उनको, तो उनका एक अपना रूल है। तो ये जो आपका पूरा अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है इनके पर्सनल अफेयर्स में क्या करेगा? इंटरप्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। लेकिन जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट का बात हो
वहाँ पे जो है ये इंटरप्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी लाएगा। वही कंट्री में होता है कि जब 2 लेवल होता है तो जो एक लेवल होता है वो पूरा कंट्री को रूल करता है, और जो कुछ कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उस पर वो लॉ बनाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो वही देखिए इस अपार्टमेंट के एग्जांपल से समझिए कि ये जो पूरा हुआ कंट्री है इसमें छोटा छोटा यूनिट क्या है, प्रोविंस है, ठीक है। ये कंट्री का जो है इसी में से कोई एक आपका प्रेसिडेंट है, आप प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, जो इस अपार्टमेंट का हेड है। उसके बाद हर जो घर है उसमें जो हर फ्लैट है उसका एक अलग हेड है, उसको आप चीफ मिनिस्टर मान लीजिए। तो ये जो अपार्टमेंट का हेड है उसको चीफ मिनिस्टर का जो पर्सनल अफेयर्स है यानी उसका घर का जो अफेयर्स है उसमें वो इंटरप्शन नहीं करेगा। और उसी तरह से ये जो आपका हर घर है वो प्रेसिडेंट के वर्क में इंटरप्शन नहीं करेगा। कब? जब रूल रिटन हो तब। रूल रिटन नहीं हो तब हो सकता है कुछ अफेयर्स हो। आपको सिर्फ हम एक आइडियल जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, कि जब घर का अफेयर्स हो तब ये इंटरप्ट नहीं करेगा, इसका घर के अफेयर्स में ये इंटरप्ट नहीं करेगा। अब समझिए एक ऐसा डिस्प्यूट जो है अराइव होता है, ठीक है, एक ऐसा डिस्प्यूट अराइव होता है कि यहाँ पर जो है उसका इसका कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, चाहे कोई किसी का गेस्ट आ रहा है, वो जो है यहाँ पे आके कार लगा रहा है। अब कार लगा रहा है तो बगल वाला अपार्टमेंट बोलता है कि नहीं जो है रोड पे कार नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट जो है इस मैटर को सॉल्व करेगा, क्योंकि ये देखिए फॉरेन कंट्री है, फॉरेन अफेयर्स है। तो फॉरेन अफेयर्स को कौन देखेगा? ये अंदर वाला आदमी नहीं देखेगा, ये जो है पूरा आपका प्रेसिडेंट देखेगा कि हम कार लगाएंगे, ये हमारा जो है जगह है, हम अपने साइड में लगा रहे हैं, तो इसमें तो उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन अफेयर्स को कौन देखेगा? प्रेसिडेंट देखेगा, जो अपार्टमेंट का होगा, या प्राइम मिनिस्टर देखेगा। लेकिन अब ये समझिए कि अब अंदर में अगर 2 घर में अगर आपका जो है किसी तरह का डिस्प्यूट हो अंदर में, इस कंट्री के अंदर में, इस अपार्टमेंट के अंदर में, तब जो उसके लिए सेपरेट या तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, यानी प्रेसिडेंट ही यहाँ पे जुडिशियरी का काम करेगा, ठीक है। और लेकिन जब ये यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम होगा, क्या? जब प्रेसिडेंट के घर से किसी दूसरा घर का झगड़ा हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट भी इसी कंट्री में रह रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जरूरत क्यों पड़ रहा है फेडरल सिस्टम में? क्योंकि आपका डिसीजन होगा इम्पार्शियल हो, ठीक है ना, डिसीजन इम्पार्शियल हो, इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है हो सकता है कुछ रूल्स हो, जैसे आप रूल्स आपका क्या हो सकता है, एक अपार्टमेंट का एक मोहल्ला का रूल्स हो सकता है कि ये जो है खेलने का पार्क एक ही है, तो इतना से इतना टाइम के बीच जो है लेडीज जाएगी पार्क में, इतना से इतना टाइम के बीच जो है मेल्स जाएगा पार्क में, ठीक है। तो ये रूल्स है, रूल्स से जो है सबको अवॉइड रहना पड़ेगा, यानी कि एक एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो ये एक एग्रीमेंट है कि सब साथ मिल के रह रहा है, और उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट है कि सब जो है उसको फॉलो कर रहा है, यहाँ का जो रूल्स है रेगुलेशंस है। अगर रूल्स में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो सब मिल करके सुलझाएंगे उसको, या फिर कोई एक जुडिशियरी जो है उसको सॉल्व करेगा प्रॉपर वे में, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो ये है आपका फेडरलिज्म, और ये है आपका फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसको जो है आप ध्यान से इस पॉइंट को जो है समझिए, तो समझ जाइए कि आपका पूरा फेडरल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।